آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے ایمان لانا اور بپتسمہ لینا. اور ہم پڑھیں گے مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت. یہاں لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. یہ آیت جو ہے یہ اس گفتگو کا ایک حصہ ہے جو یسوع نے آسمان پہ جانے سے پہلے شاگردوں کے ساتھ الوداعی بات چیت کی اس کا ایک حصہ ہے. یعنی قول سعود یسوع کی آخری ہدایات میں سے یہ ایک ہدایت ہے اور اسے ہم گریٹ کمیشن یا ارشاد اعظم کہتے ہیں. اس آیت کے 3 حصے ہیں. سامنے دیکھیں. پہلا حصہ ہے ایمان لانا, دوسرا حصہ ہے بپتسمہ لینا اور اس کا انجام بھی ہے نجات. تیسرا حصہ ہے ایمان نہ لانے والوں کی سزا, مجرم ٹھہرائے جائیں گے. تو آئیے پہلی بات پہ غور کرتے ہیں. ایمان لانا. ایمان لانا ایک کام ہے. کیسے؟ جیسے کھانا پینا رونا سونا اور کیا ورب بولے کوئی اور کرکٹ کھیلنا اور کیا کیا ورب ہے. پھر اور کیا کیا ہے؟ چلنا بھاگنا اور گیت گانا کلام سنانا یہ ورب ہے. ایسے ہی اس کا مطلب یہ ہے ایمان لانا بھی ایک ورب ہے. اس میں کسی کام کا ہونا پایا جاتا ہے. یعنی یہ ایک ایسا لفظ ہے ورب ہے جس میں کسی کام کا ہونا پایا جاتا ہے. ورب ہوتا ہے ایمان لانا اور جو ناؤن ہے وہ ہے ایمان. بس جس کی بات ابھی دوسرے لوگوں میں کر رہا ہوں وہ ہے بلیف اور اس کا مطلب ہے عقیدہ. وہ ایمان جو آپ لائے نہیں ہیں لیکن آپ کے اندر ہے جو آپ ایمان رکھتے ہیں. اب یہ ایمان رکھنا ہے لانا نہیں جو اب بیان کرنے لگا ہوں. مثال کے طور پر دنیا میں بے شمار لوگ ہیں اور ان کے طرح طرح کے ایمان ہیں. مثال کے طور پر سکھ وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک اچھا نبی تھا, نیک نبی تھا. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح معجزات کرتا تھا. اور اسی طرح سے بعض روحیں جو ہیں وہ یسوع مسیح پر ایمان رکھتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیسا ہے. تو ایمان ان کا ہے, وہ ایمان رکھتے ہیں. رسولوں کے عقیدے میں یہ کہا جاتا ہے میں ایمان رکھتا ہوں یسوع مسیح ہوا دفن ہوا, میں ایمان رکھتا ہوں یسوع مسیح واپس آئے گا. یہ ایمان رکھنا ہے, یہ لانا نہیں ہے. اور اگر یہ جو ایمان ہے جو ورب نہیں ہے, اگر یہ ہے اور اس کو آپ عملی پریکٹس میں نہیں لائے تو یہ بے فائدہ ہے, بیکار ہے, مردہ ہے. کتنوں کو سمجھ آ گئی؟ جو ایمان رکھا جاتا ہے اگر آپ اس کو عمل میں نہیں لاتے اور ایمان لاتے نہیں ہیں تو جو دوسرے نمبر پہ ایمان ہے بلیف وہ مردہ ہے, بیکار ہے. 1000 دفعہ آپ رسولوں کا عقیدہ پڑھ لیں نجات نہیں پائیں گے. ایسا ایمان مردہ ہے, بیکار ہے, بے فائدہ ہے اور اس کے کوئی فائدہ نہیں. چند مثالیں. بدروہیں کیا ایمان رکھتی ہیں؟ یعقوب 2 باب تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے, خیر اچھا کرتا ہے. شیاطین بھی ایمان رکھتے اور بڑھاتے ہیں. خدا کا خادم پالوس لکھتا ہے کہ جو بدروہیں ہیں, ڈیمنز ہیں, شیاطین ہیں, وہ ایمان رکھتی ہیں, وہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ایک ہے. وہ کچھ اور بھی ایمان رکھتے ہیں. لوکا 14 باب اس کی 41 آیت. اور بدروہیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے بہت ان سے نکل گئی. تو بدروہیں ایمان رکھتی ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. اگر کسی کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور وہ ایمان لایا نہیں ہے بلکہ ہے, یہ بے فائدہ ہے. آگے کیا ہے؟ بدروہیں بھی رکھتی ہیں اور وہ انہیں جھڑکتا تھا, بولنے نہ دیتا تھا. آگے کیونکہ وہ جانتی تھی
بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ بدو ایمان رکھتی ہیں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور وہ عذاب میں ڈالے گا۔ آپ بھی رکھتے ہیں آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور وہ عذاب میں ڈالے گا۔ اگر صرف یہ ایمان ہے، دس از ڈیڈ، یہ بولا ایمان ہے، بے فائدہ ایمان ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور بہت سے انسان، یہ تو بدلوں کی بات ہو رہی تھی، انسان کسی بھی مشن کے ہو، کسی بھی مذہب کے ہو، وہ ایمان رکھتے ہیں جو ان کے اندر پہلے سے ایمان ہے بے فائدہ ہے۔ مثلا تیتس کے نام پیراگراف 16 میں آئی، وہ خدا کی پہچان کا وعدہ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہے اور کسی نیک کام کے لائق نہیں۔ اور یعقوب دوسرا باب 19 میں آئے، تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے، یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، کہا اچھا کرتا ہے، اٹس گڈ، وہ کہتا ہے اوکے اٹس گڈ، چلو اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان لاتے اور تھرتھراتے ہیں۔ جو لوگ صرف ایمان رکھتے ہیں خدا ایک ہے، خدا پاک ہے، خدا لازوال ہے، خدا خالق ہے، خدا معجزات کرتا ہے، کافی نہیں، ایمان رکھنا کافی نہیں۔ تو یہ آیت جو تیتس میں سے میں نے پڑھی ہے، یہ یعقوب میں سے، اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ خدا کی کہ خدا پر جو ہمارا موجودہ ایمان ہے وہ بے شک الوہیت پر بھی ایمان ہو، باقی القدس میں بھی ایمان ہو، یہ بھی کافی نہیں۔ رسولوں کا عقیدہ میں نے کہہ دیا ہے، مردہ ہے، اگر یعنی اس کے اندر لفظ جو ہے مردہ نہیں ہے، اگر ان کو پریکٹس میں نہیں لاتے تو مردہ ہے، بے فائدہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے بلیو، ایمان لانا۔ روحانی مطلب ہے اپنے ایمان کو عملی جامہ پہنانا، یعنی جو ایمان آپ رکھتے ہیں، جو آپ کے اندر ہے کہ یسوع مسیح نجات دینے والا ہے، آپ کے اندر یہ ہے یسوع آپ کے لیے ہوا، آپ کے اندر یہ ہے یسوع مسیح نے آپ کے لیے جان دی، آپ کے اندر یہ ایمان ہے کہ یسوع مسیح کا لہو اس لیے بہایا گیا تاکہ ہمارے گناہ بخشے جائیں، ہمارا دل پاک ہو جائے۔ اگر یہ ایمان جو آپ رکھتے ہیں اس کو پریکٹس میں لاتے ہیں اور پھر حقیقت میں کہتے ہیں اے خدا پہلے تو میرا صرف ایمان تھا کہ تو نجات دینے والا ہے، اب میں ایمان لاتا ہوں مجھے نجات دے۔ کتنوں کو سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہے to bring your faith into practice۔ اب ہے بپتسمہ، لیکن اتنا آپ کو پتہ چل گیا بپتسمہ کب لینا ہے؟ جو آپ کا ایمان ہے آپ کے اندر اس کو پریکٹس میں نہیں لائے تو بپتسمہ نہیں لے سکتے۔ ایمان لانے کے بعد بپتسمہ یونانی زبان میں جو اس کے لیے اوریجنل، جس میں پہلی دفعہ نیا عہد نامہ لکھا گیا، بپتسمہ لفظ جو ہے وہ ہے بیپٹیزو، اور اس کا مطلب ہے یہ وہ ہے، اس کا مطلب ہے ڈبکی دینا، غوطہ دینا۔ عربی میں اس کے لیے لفظ ہے استباغ، غوطہ دینا، اور کیتھولک جو ترجمہ ہے اس میں یوحنا کے نام کیا لکھا ہوا ہے؟ یوحنا استباغی، یوحنا غوطہ دینے والا۔ تو بپتسمہ لفظ کا مطلب ہی غوطہ ہے۔ اگر کوئی کہے میں نے بپتسمہ لیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے غوطہ لیا ہے، مطلب ہی یہی ہے غوطہ۔ تو بپتسمہ مسیحی ایمان کی بنیاد ہے اور یہ بنیادی تعلیم ہے، یہ کرسچینٹی کا مسیحی تعلیم کا سیکرمنٹ ہے اور یہ پبلک ڈیکلریشن ہے۔ بپتسمہ پبلک میں اعلان کرنا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں۔ ایمان لانے کے بعد بپتسمہ لیا جاتا ہے، تو یہ پبلک ڈیکلریشن کا مطلب ہے عوام کو بتانا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں۔ بپتسمہ یہ ہے کہ پہلے میرا ایمان تھا کہ یسوع نجات دینے والا ہے، اب میں ایمان لایا ہوں کہ مجھے نجات دے سکتا ہے اور میں نے سکھا مجھے نجات دے، اب میں بپتسمہ لے سکتا ہوں۔ اور بپتسمہ کیا ہے؟ یہ یسوع مسیح کے مرنے اور دفن ہونے میں شمولیت ہے۔ آپ کے لیے یہ کہاں سے بات آ گئی؟
यीशु के मरने में हम शामिल होते हैं और यीशु के जी उठने में शामिल होते हैं। जब किसी शख्स को हम पानी का बपतिस्मा देते हैं, उसे पानी के अंदर यूं ले जाते, आप तो देख रहे हैं, देखिए, जब किसी शख्स को हम पानी के अंदर यूं ले जाते हैं और वो पानी के अंदर चला जाता है, इसका मतलब है वो मसीह के साथ मर गया और दफन हुआ, और जब ऊपर आते हैं तो इसका मतलब है मसीह के साथ जी उठा। तो बपतिस्मा जो है यीशु के मरने, दफन होने और जी उठने को पेश करता है। अगर कोई कहता है मैं बपतिस्मा नहीं लेना चाहता, दूसरे लफ्जों में यीशु के मरने में ईमान नहीं रखता, यीशु के जी उठने में ईमान नहीं रखता। अब बपतिस्मा जो है क्यों लें? ये शादी आज़म है भाई, बात के लिए तालियां बजाते हैं। क्यों लें? क्योंकि ये हुक्म है। हेलो, तालियां बजाते हैं। क्यों लें? हेलो, क्यों लें बोले? क्योंकि ये हुक्म है। ऑर्डर इज ऑर्डर, हुक्म मानना ही पड़ता है। शादी आज़म है, ग्रेट कमीशन है। दूसरी बात, यीशु की मौत में शमूलियत है, यीशु की तदफीन यानी दफन होने में शमूलियत है, और बपतिस्मे के बाद हम नई जिंदगी में चलना शुरू करते हैं। जब इस बड़े रोमियो 6 बाब 3-4 आयत सामने आयत लिखी है, क्या तुम नहीं जानते कि जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, इस बपतिस्मे से हम मसीह में शामिल होते हैं। जो मसीह में शामिल होते हैं वो बपतिस्मा लेकर मसीह के बदन का हिस्सा बनते हैं। तो लिखा है मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जनाब के वसीला से मुर्दों में से जी उठा, हम भी नई जिंदगी में चले। तो बपतिस्मा क्या है? 3 बातें इस आयत में है। मेरे को देखें, पहली बात, यीशु मसीह की मौत में शामिल होना और मौत में शामिल होने के वसीला से मसीह में शामिल होना। नंबर 2, हेलो, नंबर 2 क्या है? यीशु के दफन होने में शामिल होना, और नंबर 3 यीशु के जी उठने में शामिल होना। और जैसे यीशु जी उठा, उसकी खिदमत फर्क हो गई, वैसे जब हम जी उठते हैं पानी का बपतिस्मा लेकर, तो नई जिंदगी में चलना शुरू करते हैं। तो बपतिस्मा लेकर नई जिंदगी का आगाज होता है। बोले हालेलुया। अंजील मुकद्दस की पहली 4 किताबें कौन सी हैं? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। इनमें यीशु मसीह के पैदा होने और यीशु मसीह के तालीम देने, मौत से करने, मरने, दफन होने, जी उठने और आसमान पे जाने की तालीम है। लेकिन जो 5वीं किताब है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के बाद, ये किताब रसूलों के ईमान कहलाती है, और इसमें रसूलों ने जो काम किए हैं, शागिर्दों ने कलीसियाएं कायम की हैं, उनका जिक्र है। ये कलीसिया की हिस्ट्री है। तो चर्च हिस्ट्री आप पढ़ेंगे कि रसूलों ने क्या तालीम दी। उन्होंने लोगों से कहा ईमान लाओ, वो ईमान लाए, और फिर कहा बपतिस्मा लो, उन्होंने बपतिस्मा लिया। ईमान की किताब में से जब यीशु आसमान पे चला गया, शागिर्दों ने तालीम देनी शुरू की। पहला वाक्या ईद पेंटिकोस्त पे, ईमान की किताब 2 बाब, पतरस खड़ा हुआ, उसने कहा 12 मुल्कों के यहूदी खड़े थे, जमा थे, उसने कहा यहूदियों सुनो, जिस यीशु को तुमने मसलूब किया वो इसलिए मसलूब हुआ कि हमारे गुनाहों का कफारा दे। जो उसकी मसलूबियत को कबूल करते हैं, उसके यीशु के लहू से अपने दिलों को धो के पाक करते हैं, वो निजात पाएंगे। यीशु मसीह हुआ, दफन हुआ और जी उठा। तो 3000 लोग पतरस की बात को सुनकर ईमान लाए। लाए जोर दे जरा, बोले ईमान पर 3000 लोग पतरस की बात को सुनकर ईमान लाए, यानी उन्होंने अमली कदम उठाया, कहा मैं ईमान लाता हूं, यीशु मसीह मेरे लिए हुआ, उसके खून के वसीले से मेरे गुनाह माफ होते हैं। ऐ यीशु मेरे गुनाह माफ कर, अपने लहू से धो के पाक कर, और मैं तौबा करता हूं। 3000 लोग मसीह पर ईमान ले आए। दूसरा वाक्या, हबशी खौजा, ये यरूशलेम से जा रहा था, यहूदी था, रात में बैठा हुआ यशायाह की किताब पढ़ रहा था, और खुदा के बादलों ने फिलिप्पुस से कहा जा जंगल में बेयान की तरफ चला जा। और जब गया उसने देखा कि एक शख्स रात में जा रहा है,
जो कुछ पढ़ता है उसे समझता भी है, पढ़ता था समझ नहीं थी। उसे कहा नहीं भाई, जब तक कोई समझाए नहीं कैसे समझूं। फिलिप्पुस साथ बैठ गया, उसने कहा भाई जो तू पढ़ रहा है उसका मतलब है यीशु मसलूब हुआ, उसके मसलूब होने पे ईमान ला, वो हुआ दफन हुआ जी उठा, ईमान ला उसने कहा। और चलते चलते दोनों रथ में बैठे हुए थे, फिलिप्पुस भी साथ ही था, पानी की जगह में पहुंचे, कहने लगा तुझे पानी से के बपतिस्मे से कौन सी चीज रोकती है? उसने कहा अगर ईमान लाते तो ले ले। उसने कहा लाता, उसका चल, फिर दोनों पानी में उतर गए। और फिलिप्पुस ने हबशी फौजा को बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा लेके खुशी खुशी इथोपिया हबशा में चला गया, और इथोपिया में उसने हलचल मचा दी कि यीशु मसीह जो हुआ था, जो दफन हुआ, जो जी उठा है, मैंने तौबा की है, मैंने निजात पाई है, मैंने यीशु को शख्सी निजात देता कबूल कर लिया है, अब मैं गुनहगार नहीं रहा, यीशु ने गुनाह माफ कर दिए। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। और तीसरा वाक्य, फिलिप्पुस जो है वो सामरिया को गया, यरूशलेम में अपनी खिदमत मुकम्मल करके सामरिया में गया, और सामरिया में जाकर उसने कहा वो यीशु जो सामरी औरत के जमाने में यहां आया था, वो मर गया, दफन हुआ, जी उठा, मैं उसका गवाह हूं कि वो जी उठा है, और उसने मुझे रूह से मामूल किया है, उस पर ईमान लाओ कि वो निजात देता है। बस लोग ईमान लाए, और सामरिया के बेशुमार मर्द और औरत जो है ईमान लाए, और ईमान लाने के बाद बपतिस्मा लिया। ये 8वां बाब है ईमान का, जो पिछला वाक्य है वो भी ईमान 8वां बाब है। और फिर नतीजा ईमान लाने के बाद इस कदर बेदारी आई वहां पे कि कलीसियाएं कायम हो गई। बोले हालेलुया। चौथा वाक्य, कर्नेलियस एक गैर कौम मतलब गैर यहूदी, ये अपने घर में था, और उसके बारे में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, सुनिए, कि वो एक नेक आदमी था। कैसा आदमी था? बोलिए, कैसा आदमी था? नेक आदमी था, अच्छा था, और बुरे कामों से बाज रहता था, यहूदियों को खैरात देता था, और नेक आदमी था। आपका क्या ख्याल है, नेक आदमी को तौबा करनी चाहिए? बोले, नेक आदमी को तौबा करनी चाहिए, निजात आनी चाहिए, पाना चाहिए, ईमान लाना चाहिए, क्योंकि नेकियां तो सारे करते हैं। पतरस कलाम सुना रहा था कर्नेलियस के घर में, तो जब कलाम सुना रहा था तो पतरस ने कहा पहले तौबा करो, पहले ईमान लाओ, और फिर बपतिस्मा लो, फिर उस निजाम में पाओगे। और ऐसा हुआ कि बपतिस्मा तो लिया ही नहीं, गैर ज़बानी बोलने लगे। कलाम के दौरान नाज़िल हुआ, फिर उसका बपतिस्मा मिला, गैर ज़बानी बोलने लगे, और जब गैर ज़बानी बोल रहे थे उसके बाद पतरस ने कहा एक स्टेप ये आगे निकल गए हैं, आइए वापस चले, इनको पानी का बपतिस्मा भी दिया जाए। इतना अहम है पानी का बपतिस्मा, इतना अहम है कि अगर आप गैर भी बोलते हैं और पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, फिर भी लेना है, लिहाजा इनको पानी का बपतिस्मा भी दिया गया। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। अगला वाक्य है साउल का, जिसका नाम बाद में पौलुस बना। ये यहूदी था, फरीसी था, मुस्लिमों पे जुल्म करता था, और मुस्लिमों को कत्ल करने के डर पे रहता था। एक दिन दमिश्क की राह से जा रहा था, एक अचानक आसमान से नूर चमका। जब नूर चमका तो अंधा हो गया, आंखें चुंधिया गई, गिर गया, और आसमान से आवाज आई, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा खुदावंद तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? और उसने खुदावंद को यीशु को कहा ऐ खुदावंद कबूल कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ? पर उससे कहा गया जा, जब उसके साथी ने उसका हाथ पकड़ के ले गए, क्योंकि वो अंधा हो गया था, और कहा गया जहां तू जाएगा तुझे बाकी कुछ बता दिया जाएगा। फिर हनानिया नाम एक शख्स को खुदावंद ने कहा रोया में कि जा, साउल जो पौलुस के कहलाता था फलां घर में ठहरा हुआ है, वहां चला गया। वो जा वहां पे, और वो गया वहां पर, और जब गया उसने पौलुस की आंखों पे हाथ रखे, उसकी आंखों से छिलके से गिरे, और वो बीना हो गया, और उसके बाद उसने पानी का बपतिस्मा लिया। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। ये आयत मैं पढ़ना चाहता हूं।
22वां उसकी सोल भी आए और मैं चाहूंगा सारे को 1 2 3 आप क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने नाम को धोना। जब हनानिया ने उसकी आंखों को से छिलके उतर गए तो हनानिया ने कहा अब क्यों देर करता है, तो फिर हनानिया ने उसको बपतिस्मा दिया। तो याद रखें अगला कदम यही है। फिर पौलुस, अगला वाक्य ये छठा वाक्य है, और उसके शहर के फाटक के पास फिलिप्पी के पास चंद औरतें थी, उनसे बातचीत करने लगे और उनमें एक नाम लिदिया थी, इंग्लिश में लिदिया, और वो कपड़ा बेचने का काम करती थी। पौलुस और सिलास फिलिप्पी के इलाके में गए तो लिदिया जो है वो कपड़ा बेचने का काम करती थी। पौलुस ने उसको कलाम सुनाया और वो मुसीबत ईमान लाई, और लिखा है उसके सारे घराने ने बपतिस्मा लिया। वो भागती हुई गई होगी क्या, वो देखो एक शख्स को उसने मुझे बपतिस्मा दिया, उसने मुझे तालीम दिया है, सारे घराने ने बपतिस्मा लिया। ये थवातीरा के रहने वाले थी, और फिर ये कलीसिया के साथ मिल गई। पौलुस को ये फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी। हाँ जी, माली सपोर्ट, आपका बिजनेस बढ़े तो कलीसिया को ज्यादा से ज्यादा दे, तो ये कलीसिया की माली सपोर्टर बन गई। अगला वाक्य, इस वाक्य के बाद पौलुस और सिलास, ये तो हो गया लिदिया वाला, आगे बढ़े तो इनको गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया पौलुस और सिलास को। जब जेल भेजा तो वहां कुदरती तौर से, बहुत सारा तौर से जेल के दरवाजे खुल गए। जब जेल के दरवाजे खुल गए तो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है, दरोगा, वो डर गया कि अब क्या होगा, मेरी नौकरी खतरे में है। तलवार लेके अपने को मारने लगा, पर उसने कहा ना, अपने आप को ना मार, कोई कैदी नहीं भागेगा। सारे दरवाजे खुल गए, हथकड़ियां खुल गई सबकी, उसे कोई नहीं भागेगा। और पौलुस ने उसको तालीम दी, और फिर उसने तालीम दी, कहते मैं क्या करूं, उसने कहा यीशु मसीह पर ईमान ला। अच्छा, यहाँ पर जरा गौर से सुनना, एक गलत फहमी आयत है ईमान 16:31, उस आयत में लिखा है यीशु मसीह पर ईमान ला, आगे क्या है, तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। ऐसा क्यों नहीं होता? मिसाल के तौर पर कई दफा घराने का एक बंदा निजात पाता है, दूसरे नहीं पाते। पौलुस ने कहा यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। अब सुनिए, पौलुस को ये जो दरोगा है अपने घर ले गया। जब घर ले गया तो फिर क्या हुआ, उसने घराने को कलाम सुनाया, पूरे घराने को, और पूरे घराने के लोग ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। इसका मतलब है पौलुस की वो बात पूरी हो गई कि तू ईमान ला, पहले तू तो ला, तेरा घराना भी निजात पाएगा। जब घराने ले गए, घराने ने कलाम सुना, उन्होंने भी निजात पाई और रातों रात बपतिस्मा ले लिया। बोले हालेलुया। इसका मतलब है पौलुस ने एक मिशन की थी, एक प्रेडिक्शन की थी, एक प्रोफेसी की थी, एक तू तो ला, बाकी भी ले आए। और फिर जल्दी से एक वाकया, करंथस के इलाके में पौलुस किया, वहां एक शख्स था, ये बात की किताब के 18वें बाब में है, उसका नाम था क्रिस्पस, और वो हैकल का वो था, सदाकायम था। पौलुस ने कलाम सुनाया, उसे तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया। फिर पौलुस जो है इफिसस में गया, आखिरी वाकया आज के लिए, पौलुस इफिसस में गया, वहां पर 12 लोग थे। हेलो, कितने लोग थे? अच्छा, ये वाकया गौर से सुनना है। इफिसस में गया, 12 लोग थे, तौबा की हुई थी, ईमान लाए हुए थे, निजात पाई हुई थी, लेकिन एक गलती हो गई। आप कहेंगे वो क्या? या पढ़ ले बेशक 19वां ईमान। पौलुस इफिसस में गया, 12 लोग थे, तौबा की, निजात पाई, ईमानदार थे, ईमानदार चुके थे, लेकिन उसके बाद गलती की। यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा का है ना, बाप और बेटे रूपस के नाम से, वो नहीं लिया, और जिसने दिया उसको भी नहीं पता था, लेने वालों को भी नहीं पता था। उन्होंने कहा मैं तुझे यूहन्ना के नाम का बपतिस्मा दूंगा, उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा दे दिया। पौलुस आ गया, उन्होंने 12 लोगों से पूछा कि निजात पाई? कहते हाँ जी पाई। बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा लिया। कौन सा लिया? कहते हमने तो यूहन्ना का लिया। तो पौलुस ने कहा भाई वो बपतिस्मा लो जो यीशु ने कहा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। गोते का बपतिस्मा जो पहले लिया था वो गलत था, क्योंकि वो यूहन्ना के नाम का लिया था, लिहाजा गोते का बपतिस्मा यीशु के नाम से
ईमान के बगैर बपतिस्मा लिया है या गलत बपतिस्मा लिया है, वो बपतिस्मा ही नहीं है, आप बपतिस्मा ले सकते हैं। बोले हालेलुया। तो ये 12 शहीद जो है उन्होंने बपतिस्मा लिया, और आज पूरी दुनिया में बपतिस्मे की मुनादी हो रही है। तौबा के बगैर बपतिस्मा नहीं है, निजात के बगैर बपतिस्मा नहीं है, ईमान लाने के बगैर बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा उसे दिया जाता है जो ईमान लाता है और जो खुद ईमान लाता है और खुद बपतिस्मे के लिए जाता है, और उसके बाद नई जिंदगी में चलना शुरू होती है। बोले हालेलुया।